السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کا افغانستان کے ہمسائے ممالک کے وزراء خارجہ کے تیسرے اجلاس کے لیے تحریری پیغام۔ چین، افغانستان اور پاکستان کے وزراء خارجہ کا چین میں سہ افریقی اجلاس۔ چین نے وبائی صورتحال پر قابو پانے کے لیے انتہائی سخت اقدامات کیے ہیں، عالمی ادارہ صحت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے 30 مارچ کی صبح بیجنگ میں رضاکارانہ شجرکاری کی سرگرمی میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سی پی سی کی 18ویں قومی کانگریس کے بعد سے وہ مسلسل 10 سال سے شجرکاری میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ نہ صرف ایک خوبصورت چین کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے، خاص طور پر نوجوانوں کے دلوں میں ماحولیاتی تحفظ کے بیج بونے کے مترادف بھی ہے۔ ہر ایک کو ماحولیاتی تحفظ پر عمل کرنے اور اس کو فروغ دینے والا بننا چاہیے، تاکہ ہمارے وطن کا آسمان مزید نیلا، پہاڑ مزید سبز، پانی مزید شفاف اور حیاتیاتی ماحول مزید بہتر ہو جائے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ جنگلات پانی، آمدنی اور خوراک کا ذخیرہ ہیں، اور اب یہ کاربن کا ذخیرہ بھی بن چکے ہیں۔ چین کے حیاتیاتی تحفظ کا کام اعلیٰ معیاری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ 31 مارچ کو چینی صدر شی جن پنگ نے افغانستان کے ہمسائے ممالک کے وزراء خارجہ کے تیسرے اجلاس کے لیے تحریری پیغام دیا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے نشاندہی کی کہ افغانستان نے زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا کیا ہے اور اب تمام صنعتیں بحالی کی منتظر ہیں۔ یہ انتہائی بدنظمی کے دور سے نظم و ضبط تک کا نازک دور ہے۔ افغانستان تمام شریک ممالک کا مشترکہ ہمسایہ اور شراکت دار ہے، اور جغرافیائی طور پر ہم دریاؤں اور پہاڑوں سے جڑا ہوا ایک ہم نصیب معاشرہ ہیں۔ ایک پرامن، مستحکم، ترقی یافتہ اور خوشحال افغانستان تمام افغان عوام کی خواہش ہے، اور یہ علاقائی ممالک اور عالمی برادری کے حق میں بھی ہے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ اچھا ہمسائے ایک نعمت ہے۔ چین افغانستان کے اقتدار اعلیٰ، آزادی اور علاقائی سالمیت کا احترام اور افغانستان میں امن، استحکام اور ترقی کی تکمیل کی حمایت کرتا آ رہا ہے۔ افغانستان کے ہمسائے ممالک کے ہم آہنگی و تعاون کے نظام کا آغاز گزشتہ سال ستمبر میں ہوا تھا، اور یہ افغان صورتحال کے استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ شی جن پنگ نے زور دیا کہ افغانستان کے ہمسائے ممالک کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اتفاق رائے پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ نئی صلاح و مشورے اور تعاون سے افغان عوام کے خوبصورت مستقبل کی تشکیل میں مدد فراہم کرنی چاہیے۔ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ یی نے 30 تاریخ کو صوبہ آن ہوئی کے شہر تونچی میں چین، افغانستان اور پاکستان کے درمیان سہ افریقی وزراء خارجہ اجلاس کی صدارت کی۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور افغان عبوری حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اجلاس میں شرکت کی۔ وانگ یی نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں چین، افغانستان اور پاکستان کو سہ افریقی تعاون میکانزم کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے، اور سیاست، ترقی اور سلامتی کے 3 شعبوں میں باہمی احترام، مساوی مشاورت، باہمی مفاد کے اصولوں پر مبنی تعاون کو فروغ دینا چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ تینوں فریق ایک دوسرے کے بنیادی خدشات کی حمایت کریں اور مشترکہ مفادات کا تحفظ کریں، مشترکہ طور پر بیلٹ اینڈ روڈ کی تعمیر کریں، چین پاکستان اقتصادی راہداری کی افغانستان تک توسیع کو فروغ دیں، اور علاقائی رابطوں میں افغانستان کی شرکت میں مدد کریں۔ تینوں ممالک اشتراکی جامع تعاون پر مبنی اور نئے پائیدار سلامتی تصور پر عمل پیرا ہوں۔ وانگ یی نے عزم ظاہر کیا کہ تینوں فریق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکورٹی تعاون کو مضبوط بناتے ہوئے خطے میں دیرپا امن و استحکام کے حصول کے لیے جامع اقدامات کریں گے۔ اس موقع پر قریشی اور امیر خان متقی نے چین، افغانستان، پاکستان سہ افریقی اجلاس اور افغان ہمسائے ممالک کے وزراء خارجہ اجلاس کی اہمیت کو نمایاں طور پر سراہا اور چین کے قائدانہ کردار پر شکریہ ادا کیا۔ قریشی نے کہا کہ پاکستان بیرون دنیا کے ساتھ رابطوں کو مضبوط بنانے میں افغانستان کی حمایت کرتا ہے اور افغان عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ متقی نے یہ عزم ظاہر کیا کہ دہشت گردی کو کبھی بھی افغان سرزمین کو چین، پاکستان یا دنیا کے دوسرے ممالک اور ان کے شہریوں کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے افغانستان کی ترقی اور تعمیر نو کے لیے
قابل قدر تعاون فراہم کرنے پر چین اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ تینوں فریقوں نے چین، افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان باضابطہ مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اجلاس کے بعد وانگ یی نے تمام شرکاء کی جانب سے اجلاس میں طے پانے والے اتفاق رائے کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیا جائے۔ ملک کا مستقبل افغان عوام کے اپنے ہی ہاتھوں میں دیا جائے۔ قومی حالات اور عہد حاضر کے رجحان کے مطابق افغانستان کی ترقیاتی راہ تلاش کی جائے۔ اجلاس میں افغان فریق سے بات چیت اور مشاورت کے ذریعے قومی مفاہمت اور ملکی اتحاد کے حصول کا مطالبہ کیا گیا اور افغان فریق پر زور دیا گیا کہ وہ مختلف دہشت گرد تنظیموں جیسا کہ داعش اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے حوالے سے مؤثر طور پر ایک واضح لکیر کھینچے، سخت اقدامات سے ان کا خاتمہ کرے۔ 30 مارچ کو چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ یی نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ بات چیت کی۔ روسی وزیر خارجہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کی تیسری میٹنگ میں شرکت کے لیے چین آئے ہوئے ہیں۔ ملاقات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں ممالک کے سربراہان کی طرف سے طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کیا جائے گا اور چین روس تعلقات کو اعلیٰ سطح پر فروغ دیا جائے گا۔ روسی وزیر خارجہ نے روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والے مذاکرات پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ روس کشیدگی میں کمی کے لیے کوشش کر رہا ہے اور یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات نیز عالمی برادری کے ساتھ رابطے کو جاری رکھے گا۔ وانگ یی نے کہا کہ یوکرین کا مسئلہ نہ صرف یورپ میں طویل عرصے سے مسلسل بڑھنے والے سیکیورٹی تنازعات کے باعث اٹھا ہے، بلکہ یہ سرد جنگ کی ذہنیت اور گروہی محاذ آرائی کا نتیجہ بھی ہے۔ موجودہ صورتحال میں ہم امن مذاکرات جاری رکھنے کے لیے روس اور یوکرین کی حمایت کرتے ہیں اور مذاکرات میں اب تک حاصل ہونے والے مثبت نتائج اس تنازع کی شدت کو کم کرنے، نیز روس اور دیگر فریقین کی جانب سے بڑے انسانی بحران سے بچاؤ کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمیں یوکرین کے بحران سے سبق سیکھنا چاہیے۔ باہمی احترام اور سلامتی کے ناقابل تقسیم اصولوں کی بنیاد پر تمام فریقوں کے جائز سیکیورٹی خدشات کا جواب دیا جانا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے یورپین سیکیورٹی کا ایک متوازن، مؤثر اور پائیدار ڈھانچہ تشکیل دینا چاہیے تاکہ یورپ میں طویل مدتی استحکام حاصل کیا جا سکے۔ دونوں فریقوں نے ایشیا پیسیفک، جزیرہ نما کوریا، برکس میکانزم، شنگھائی تعاون تنظیم اور CICA جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور اپنے اپنے موقف بیان کیے۔ 30 مارچ کو عالمی ادارہ صحت نے کووڈ-19 کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ WHO کے ہیلتھ ایمرجنسی پروجیکٹ کے سربراہ مائیکل ریان نے کہا کہ چین نے اس وبائی صورتحال پر قابو پانے کے لیے انتہائی سخت اقدامات کیے ہیں اور انفیکشن کی شرح، اموات کی شرح اور ہسپتال میں داخل ہونے والوں کی شرح بہت کم ہے۔ چینی معیشت اور معاشرہ وبا کے دوران بھی بہترین انداز میں کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ مائیکل ریان کا کہنا تھا کہ وبا سے کامیابی کے ساتھ چھٹکارا پانے کے لیے ڈیٹا پر مبنی مرحلہ وار طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ چینی حکومت لوگوں کو ممکنہ حد تک تحفظ فراہم کرے گی۔ چین میں بے حد ذہین لوگ، بہترین سائنسدان اور صحت عامہ کے اعلیٰ ماہرین ہیں جو حکومت کو مشورہ دے سکتے ہیں اور وبا کے خلاف جنگ میں پہلے جیسی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع بدستور بڑھ رہا ہے، ہلاکتوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یورپ اور دنیا کو پہنچنے والے معاشی نقصانات ناقابل تلافی ہیں۔ تاہم امریکی فوجی کمپنیوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے اور ان کی سٹاک قدر میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں نے نشاندہی کی کہ روس یوکرین تنازع یوکرین کے لیے امریکی فوجی مدد اور امریکی اور یورپی دفاعی بجٹ میں اضافے کے لحاظ سے امریکی فوجی صنعتی اداروں کے لیے اضافی فوائد لائے گا۔ اس وقت امریکی کانگریس میں دفاعی بجٹ میں اضافے پر اتفاق رائے بڑھ رہا ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں امریکی سینٹ نے مالی سال 2022 کے لیے $1.5 ٹریلین کا اومنی بس اپروپریشن بل منظور کیا، جس میں دفاعی اخراجات کے لیے $782 بلین رکھے گئے ہیں، جو کہ مالی سال 2021 کے مقابلے میں 42 بلین زائد ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی اور دیگر یورپی ممالک نے یک کے بعد دیگرے اپنی دفاعی پالیسیوں کو ایڈجسٹ کیا ہے، جس سے امریکی فوجی صنعتی اداروں کے لیے کاروباری مواقع بھی سامنے آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। सपनों की दुनिया सजाई मैंने तेरे लिए। क्यों न सता दिल ना जला, तेरे इश्क में हूँ मैं मुब्तला। दीदार करा दे एक बार फिर मुझे प्यार दे। कटे ना कटे रे रतिया सया दिन रैन तेरे सपनों में रहूं, तो आए ना जाए मैं कैसे कहूँ। दिन रैन तेरे सपनों में रहूं, तो आए ना जाए। हो काहे सताया तूने सपना दिखाया तूने,
दरीचाए सकाफत, वो खिड़की जो खुलती है माजी में और हमें दिखाती है मुस्तकबिल भी। चाइना रेडियो इंटरनेशनल का सिलसिला दरीचाए सकाफत। चीनी सकाफत के खूबसूरत रंग, चीनी तहजीब की खुशबू, चीनी रस्मो रिवाज, खेल, लोकगीत, कहानियाँ, मुसव्विरी और फने तामीर के शाहकार नमूने। हर बार कुछ नया मगर माजी से जुड़ा हुआ। तो सुनते रहिए दरीचाए सकाफत, CRI उर्दू का खुसूसी सिलसिला। चाइना रेडियो इंटरनेशनल के बीजिंग स्टूडियो से आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं दरीचाए सकाफत। इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मैं हूं जुबैर बशीर और मैं हूं आपका मेज़बान लिउ शाओहुई। सामीन मोहतरम, बीजिंग से हम दोनों का मोहब्बत भरा सलाम कबूल कीजिए। इस प्रोग्राम में हम चीनी सकाफत से जुड़ी मुख्तलिफ खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और जब लियो साहब इस प्रोग्राम में मौजूद हों तो इसका मतलब है कि हम किसी ऐसे सकाफती पहलू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक गहराई के साथ अदब से जुड़ा होगा। और जब अदब की बात हो तो आपका पसंदीदा मौजू शायरी ही हमारा इंतखाब होती है। सामीन मोहतरम, शायर जो हैं हमेशा लतीफ़ जज्बात की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, बहारों की बात करते हैं और खूबसूरत चीज़ों की तारीफ़ व तौसीफ़ की बात करते हैं। वो कभी भी जंगों को, लड़ाइयों को या तबाही को पसंद नहीं करते। तो कुछ इसी तरह का मौजू आज हमारे प्रोग्राम में भी शामिल होगा। ये क्या मौजू है, किस शायर का कलाम है, ये सब कुछ जानेंगे एक खूबसूरत नगमे के बाद। गमे आशिकी तेरी राह में, शबे आरज़ू तेरी चाह में, जो उजड़ गया वो बसा नहीं, जो बिछड़ गया वो मिला नहीं। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। तेरे हाथ विच डोर विसाना, तेरी दा की जोर विसाना, गुम सुन बैठी कमलिया वागो, अंदर चुपदा शोर विसाया। मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा। मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर
गुजर गए। मेरा आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। कभी नींद में कभी होश में तू जहाँ मिला तुझे देख कर, कभी नींद में कभी होश में तू जहाँ मिला तुझे देख कर, ना नजर मिली ना जुबां हिली, यूं ही सर झुका के गुजर गए। मेरा आशिकी शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। हमें आज की तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं दरीचा सकाफत ज़ुबैर बशीर और ल्यूशा खोई के साथ। ल्यू साहब, शायर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लतीफ़ जज्बात के हामिल होते हैं। उनके दिल में मोहब्बत के लिए तो जगह होती है, वो नफ़रतों को अपने यहाँ जगह नहीं दे पाते। इसी तरह वो कुदरत की जो खूबसूरतियाँ हैं उनकी तारीफ़ करते हैं, और ऐसी चीज़ें जो इंसान को अच्छी नहीं लगती या इंसान को भली मालूम नहीं होती वो उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और उनका जो पैगाम है वो मोहब्बत है, और इसी के लिए वो सारी उम्र सरगर्म अमल रहते हैं। आज हमने किस शायर के कलाम का इंतखाब किया है और इस कलाम का मौजू क्या है? आज का इंतखाब है थोड़ा सा इसका भारी होता है ये टॉपिक, क्योंकि आजकल हमारे दुनिया को ना बहुत बड़ा चैलेंजों का सामना है, मसाइल, और यहाँ तक कि वबा है, पैंडेमिक और जंग, और ये तमाम बनिनो इंसान तमाम लोगों के लिए बहुत दुख की बात होती है। इसलिए आज का हम ये टॉपिक है जंग। ये एक बहुत भारी टॉपिक होता है, लेकिन ये नाकुरैस होता है आजकल। इसलिए जो शायर हैं इसका जिक्र है, हमने पिछले दफ़ा ली बाई की शायर के बारे में ना हमने कहा था, ये ली बाई के एक ही दौर के शायर है, तकरीबन 1000 साल पहले के ली बाई के साथ हैं, इनके करीबी दोस्त भी हैं तूफू, जिनके शेर की तारीख़ में ना दो सबसे अहम और नामवर शायर हैं, एक है ली बाई और तूफू। दोनों हैं थांग शाही ख़ानदान, यानी 1000 साल पहले के है ना के दौर में वहाँ के मुमताज़ शायर होते हैं, लेकिन दोनों हैं एक दूसरे के बरक्स होते हैं। ली बाई है रोमांटिक शायरी के नुमाइंदा है, जबकि रियलिस्टिक जो शायरी का नुमाइंदा है तूफू है। ली बाई सारी उम्र में ना वो इधर उधर घूमते फिरते हैं, पूरी दुनिया के सफ़र करते रहते हैं, और तूफू है इससे पहले जब जवान थे वो एक सरकारी ऑफिसर के ओहदे पर फाइज थे, लेकिन उनकी जो करियर इतना हमवार नहीं थी और इत्मीनान बख्श भी नहीं है। इस शायरी का टॉपिक होता है जंग है, क्योंकि उस ज़माने में जिन है बैरूनी जारहियत का शिकार है, और तूफू है शुमाली जिन से तमाम पनाह गुज़ीरों के साथ फरार होकर जनूबी चीन के सूबा सिचुआन पहुँचे, और आज तक सूबा सिचुआन है। सिचुआन के सदर मकाम चंगतू में उनके एक झोंपड़ी का आसार था,
आसार है, अब भी बाकी है, लेकिन वहाँ एक स्याह जगह एक बार के ना शक्ल में बना दिया गया है। बहुत वसी एक बार होता है, लेकिन वही जगह है तूफू ने बहुत ज़्यादा ना मुमताज़ शायरी ने उन्होंने की है। इनमें से जो आज हम सुना रहे हैं, इनमें से एक होता है कि वहाँ शुमाली जिम में ना जिनसे जनूबी चीन तक पहुँचने के बाद अपने मातर वतन की याद में जो लिखी है, ये सबसे मशहूर है ना एक कलाम है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अच्छा, शुरू में हमने बात ये की कि शायर जो हैं वो हमेशा लतीफ़ जज्बात की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन अगर हम रिज़मिया शायरी की बात करें या जंगी तरानों की बात करें तो वो भी शायरों की जानिब से लिखे जाते हैं। तो उनके लिए फिर शायरों की जानिब से जो तवजीह पेश की जाती है कि ये वो नगमे हैं या ये वो जंगी तराने हैं जो वो अपने मादरे वतन की मोहब्बत में तहरीर करते हैं। तो चीनी ज़ुबान में क्या ऐसी शायरी भी मौजूद है जिसमें जंगी तराने वगैरह शामिल हों, जो शायरों की जानिब से मादरे वतन और मादरे वतन के लिए लड़ने वालों की हौसला अफजाई के लिए लिखे गए हों? देखें जी के जो क्लासिक शायरी में ना जो जंग के हवाले से दो किस्म होते हैं। एक हम कहते हैं सरहदी कलाम, सरहदी शायरी। सही। वो उन फौजी सिपाहियों की है ना नुमाइंदगी करते हैं जो वहाँ है ना सरहद इलाके में ना बैरूनी फौजियों के ना के साथ लड़ाई के बारे में, और यहाँ तक कि है ना मगरबी और शुमाली चीन के आस्तान वो जो रेगिस्तान के मनाजिर का अक्कासी करते हैं, ऐसे शायरी होते हैं। आमतौर पर ये तो उस ज़माने के फ़ौजी दस्ते के कमांडर है जिनके जो इल्म भी होते हैं, तालीम भी हासिल करने वाले हैं। आमतौर पर जो आम सिपाही है वो उस ज़माने में ना तालीम इतना वसी आम नहीं होते हैं, इसलिए वो लिखने से वो नहीं हो सकते जो शायरी। इसलिए बेशतर जो सरहदी शायरी है, जनरल है और उनके साथ जो अहलकार है, उनके जो स्टाफ है वो लिखते हैं। सही। यस। और एक दूसरी है जो आम जिंदगी, आम लोगों की है ना नुक्ता नज़र से जंग को देखते हैं, ऐसे भी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि फ़ौजी है ना बेगरहार बहुत कम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है जो आम लोगों के उनका एहसास है दुख क्या होता है, अपने वतन को छोड़कर गैर मुल्क में गैर ज़मीन पर है ना भागते हैं, वहाँ कोई पनाह नहीं है, भूख मारे हैं, अपने बच्चे हैं ना भूखे मारे हैं ना मर जाते हैं। ऐसी दुख है जो तूफू है, उनके जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जो सिटा में मर गए हैं, वो देखते देखते मर जाते हैं क्योंकि कोई इलाज नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। इसलिए असल में ज़ाती तौर पर मुझे तूफू की है ना कलाम मुझे पसंद नहीं होता, क्योंकि वो इतनी गहरी दुख होते हैं, हमारे जो नाजुक दिल है बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ज़्यादा लोग हैं लिबाई के रोमांटिक वो शायरी पसंद करते हैं, वो आपके लिए रिलीफ होते हैं। आपके जो ये सार है ना भरपूर अंदाज में ना मनाजिर के खूबसूरत मनाजिर दुनिया है और सफ़र करते हैं और तलवार के साथ है ना नाइंसाफ़ी को ना हमको तपाते हैं, उनको मारते हैं। यह आइडियल होता है, लेकिन ये दुनिया है अर्जी है, बिल्कुल सही, आइडियल नहीं है। हम ज़मीन पर वापस आना है। दूफू इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि लिबाई से ज़्यादा अज़ीम है, नंबर 1 होते हैं, क्योंकि वो हमारी इस दुनिया को ना, दुनिया की दुख को ना सबसे गहराई से हमको हमारे सामने 1000 सालों के बावजूद भी हमारे सामने आँखों के सामने पेश करते हैं। बिल्कुल ऐसे है, और आज भी ये चीज़ें हमें ताज़ा लगती हैं। तो आज सामीन भी मुंतज़िर हैं, वो कलाम पहले चीनी में सुनाइए, फिर उर्दू में थोड़ा बताइए कि ये क्या है जो आज हम सुन रहे हैं आपसे। आज जो ये कलाम है चुनवा चीनी नाम होता है, यानी मौसम बहार के मौके पर है, जब वो अपने वतन से भाग गए हैं और फिर बहुत दुख के जो जज्बात में ना वो महू होते हैं और वापस मोड़ कर देखते हैं कि हमारे मादर वतन वहाँ तबाह हो गए हैं और तवील अरसे से वहाँ से कोई पैगाम नहीं मिल रहा है। ये है इस शायरी का पूरा मतलब होता है। मैं पहले चीनी में सुनाऊं और फिर उसके बाद उर्दू में ना लफ्ज़ी तौर पर मैं तर्जुमा करता हूँ
हाँ वैसे हस्ब मामूल ज़ुबैर साहब हैं, आप अपनी है ना समझ के मुताबिक उर्दू शायरी की है ना शक्ल में हमारे लोगों को एक बार फिर सुनाते हैं। इस आखिरकार ये नज़म है, बिल्कुल ये कलाम है, इसलिए कलाम की मज़े से ना आप उनको सुना देंगे। ओके, चीनी में हम कहते हैं चुनवांग, ये टॉपिक है। 国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连三月，家书抵万金。白头搔更短，浑欲不胜簪。मादर वतन तबाह हो गया है, पहाड़ और दरिया अपनी जगह पर मौजूद हैं। शहर में मौसम बहार आया है, घास बहुत ऊंची और दरख्त बहुत घने हो गए हैं। ये वैरानी देकर फूल रो रहे हैं और हिजर के दुख से परिंदे भी गमज़दा हो गए हैं। जंग की आग को 3 माह हो चुके हैं, जंग की आग को 3 माह हो चुके हैं। घर से जो खत आया है सोने की तरह कीमती है। सफ़ेद बाल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। मेरी बीन इन बालों को संभाल नहीं सकती। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यानी पंजाबी का एक शेर है, उसका मिसरा है कि मौसम तेरे आमन नाल, मौसम तेरे जामन नाल। मौसम जो है उनको आप महसूस कर सकते हैं कुछ चीज़ों के साथ को रिलेट करके। अगर खुशियां हैं तो आपको मौसम बहार अच्छा लगेगा, अगर खुशियां नहीं हैं तो फिर मौसम बहार ख़िज़ां से भी बुरा लगता है। तो अब इसको हम बिला ताख़ीर इस नज़्म को कोशिश करते हैं कि उर्दू शायरी के स्टाइल में आपके साथ शेयर किया जाए। जंग तबाही लाई है, जंग तबाही लाई है। हैं पहाड़ अपनी जगह पर, दरियाओं में रवानी है, बहार भी लौट के आई है। जंग तबाही लाई है। दरख्तों की कांट छांट नहीं हुई, घास बहुत बढ़ आई है। ये वीरानी देख फूलों की आंख भर आई है। जंग तबाही लाई है। हिजर के दुख में परिंदे गमज़दा हैं, अहले वतन 3 माह से जंग ज़दा हैं। घर से सोने जैसी चिट्ठी आई है। जंग तबाही लाई है। सफ़ेद बाल अब गिरने लगे, जूड़े की पिन न इनको संभाल पाई है। जंग तबाही लाई है, जंग तबाही लाई है। इस वक्त दुनिया को जिन होलनाकियों का सामना है जंगों की सूरत में, ये नज़्म जो है उन एहसासात की अक्कासी करती हुई। जब ये मैं सुन रहा हूँ आपके जो सुना रहे हैं ना, मेरी आंखों में, मेरे जहन में ना वो मुनासिर आ रहे हैं जो आजकल हम जो सोशल मीडिया पर और फिर टीवी पर है ना हम देख रहे हैं। वहाँ यूरोप में जो जंग है ना, जो आगे और फिर बेशुमार लोग भागो और फिर वो इमारतें आप देखें अब काले हो गए हैं, कोई खास फूस नहीं है, कोई जंग की जिंदगी के कोई निशान है ही नहीं। हाँ, ये बहुत दुख की बात है। शामिल मोहतरम, अमन की दुआ के साथ और इस ख्वाहिश के साथ कि दुनिया से ये जंगो जदल, ये वबा, ये बीमारियाँ, ये दुख रुखसत हों और दुनिया फिर से मुस्कुराए, हम आज के इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं। और प्रोग्राम के hawale से अपनी आरा का इजहार urd@cri.com.cn पर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद तफ़सीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट, पता है urdu.cri.cn। ज़ुबैर बशीर और ल्यूशा खुई साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। जीने वाला
बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम, जाने कब होंगे कम। इस दुनिया के गम जाने कब
مختلف شعبہ زندگی کی باکمال شخصیات کے انٹرویوز، تاثرات اور معلومات پر مبنی سلسلہ نامور۔ معروف شخصیات کی کامیابیوں کے راز پہلی بار آپ کے سامنے، سننا نہ بھولیے سلسلہ نامور۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام نامور کے ساتھ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس اور بیجنگ اسٹوڈیوز سے میں ہوں شاہد افراز خان۔ سامعین، نامور میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ایسی ممتاز پاکستانی شخصیات سے آپ کی ملاقات کروائی جائے جو مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں اور ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ملکی اور بین الاقوامی حلقوں میں کیا جاتا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں شبیر بلوچ۔ آپ گلوبل یوتھ پارلیمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں، ون ورلڈ ڈیبیٹنگ سوسائٹی اور ینگ ڈیبیٹر سوسائٹی کے صدر بھی ہیں۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے آپ کو امن سفیر کا اعزاز بھی دیا گیا ہے۔ شعبہ صحافت سے بھی وابستہ ہیں اور اہم سماجی مسائل کو اجاگر کرنے میں پیش ہیں۔ آپ نوجوانوں کے امور اور ان کی فلاح و بہبود سے متعلق نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی انتہائی متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک بریک کے بعد آپ کو شبیر بلوچ کی بات چیت سنواتے ہیں۔ When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I go alive. I need to be free with you tonight. I need your love. जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बनो के आंसू तू चली आती है। I need your love.
वेलकम बैक सामीन। प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद अफराज खान। इस वक्त आपको ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट के डिप्टी सेक्रेटरी और मारूफ नौजवान समाजी कारकुन शब्बीर बलोच की बातचीत सुनवाते हैं। FM 98 दोस्ती चैनल, अ वॉइस ऑफ फ्रेंडशिप। जी शब्बीर बलोच साहब, बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और FM 98 दोस्ती चैनल को वक्त देने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आप लोगों ने हमें याद किया। आपसे पूछना चाहूँगा कि बतौर नौजवान इस वक्त पाकिस्तान में आप इंतहाई मुतहरिक हैं, नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल हैं। इस दौरान सबसे अहम चीज़ जो हालिया दिनों में हमें देखने में लगी कि आप ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट के डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को इस फोरम की अहमियत से मुतल्लिक क्या बताएंगे? जी शाहिद भाई, बिल्कुल ये मेरे लिए बल्कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो कि पूरे एशिया का पैसिफिक डिप्टी सेक्रेटरी एशिया कमेटी का मुंतखब हुआ हूँ, जो कि ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट जो कंट्री है वो नेपाल काठमांडू से है, जिसके फाउंडर दिवाकर साहब हैं, जो अब तक ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट 81 ममालिक के साथ काम कर रही है। तो बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और बड़े अच्छे तरीके से ये लोग अपने सिस्टम को लीड कर रहे हैं 2010 से। इनका जो मोटो है वो ये है कि आवर पीपल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर वर्ल्ड, कि हमारे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है और हमारा जो ये दुनिया है जिसके ऊपर हमें काम करना है। इसमें शायद भाई मेन चीज ये है कि इसमें आपको सिर्फ हम जो है ना, इसमें ये लोग एंटरप्रेन्योर्स को और जो कि यंग पॉलिटिशियन है उनको ये लोग लीड करते हैं, गाइड करते हैं, डिफरेंट यूथ कैंपेन्स के एक्टिविटीज देते हैं और हर साल इसमें 2 से 3 समिट्स होते हैं और कॉन्फ्रेंसेस होते हैं यूथ के ऊपर और सियासी सिस्टम के हवाले से। तो इसमें सबसे बड़े एजाज की बात यह है कि अहम चीज है कि 81 ममालिक में अब 1 महीना हुआ है। इस 1 महीने में इन लोगों ने जो पैसिफिक जो डिप्टी सेक्रेटरी मुझे एशिया कमेटी का जो मुंतखब किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक इनको 1 महीने में 6 से 7 ममालिक में कनेक्ट कर चुका हूँ, जिसमें आपका ईरान है और आपका ओमान है, आपका जो दुबई है और उसमें साथ साथ आपका इंडोनेशिया है और साथ साथ ये हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो इंडिया भी है और अफगानिस्तान भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदा, और जॉर्डन भी है, जॉर्डन में भूल गया था, जॉर्डन में भी हमने 15 मेंबर बना लिए हैं, जो कि ये सारा मेरा काम है, मेरा किरदार है उनके साथ। और अभी पाकिस्तान में भी ये लोग मुझे बहुत फोर्स कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की जो कोऑर्डिनेटर शिप है, कंट्री कोऑर्डिनेटर, आप उसको भी एक्सेप्ट करें, उसकी भी जिम्मेदारी संभालें। तो मैंने कहा ये फिर मेरे लिए
सोने पे सुहागा है कि मैं लाजमी जो है ना अपने मुल्क के लिए इतना खिदमत कर रहा हूँ, इतने काम कर रहा हूँ वॉलंटियरिज्म बेस पे। शायद भाई ये आपको बताता चलूं कि ये सब कुछ वॉलंटियर बेस पे जो मैं कर रहा हूँ, बनिस्बत कि मैं किसी और गलत चीज पे जाने से बेहतर है कि मैं सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज करूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 सालों से ये पॉजिटिव जो यूज है सोशल मीडिया का या डिजिटल का, उसको यूज करने से आज मैं ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट तक पहुंचा हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो कि ये लोग 2010 से काम कर रहे हैं और मैंने इनको 1 महीने में 6 से 7 ममालिक में कनेक्ट करके हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एशिया लेवल पे, तो अभी पाकिस्तान लेवल पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम लाहौर में हूँ और लाहौर में हमने अनाउंस कर दिया है इसकी मेंबर साजी के हवाले से ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट की। कल हमारा पीसी होटल में इसकी मेंबर साजी है बाकायदा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमें 70 लोगों ने इसके मेंबर साजी के लिए कांटेक्ट किया है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में मुझे भी इन लोगों ने एज अ कंट्री कोऑर्डिनेटर अनाउंस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकायदा कल से जो है ना इसके ऊपर मेंबर साजी करेंगे। और मैं जरा बताता चलूं कि शायद भाई ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट में अब तक जो लोग इन्वॉल्व हैं वो 1.5 लाख के करीब लोग इसके ऊपर मतलब काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और साथ साथ जो बेनिफिटिंग इन लोगों ने दी है वो 2 मिलियन पीपल को अब तक बेनिफिट्स इन लोगों ने प्रोवाइड किए। और जो इनका मेन से ज्यादातर टारगेट है वो यूथ जो कैंपेन्स है, वो डिफरेंट यूथ कैंपेन्स को जो है ना ये बनाते हैं और काफी ममालिक में वो यूथ कैंपेन्स वहां पे अवार्ड्स भी देते हैं, डायलॉग्स डिस्कशन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, पार्लियामेंट्री सेशंस भी होते हैं। ये ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट के हवाले से ऐसा। सही, तो यूँ कहा जा सकता है कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो एशियाई खिता है इसके नौजवानों की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट में। तो आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा पाकिस्तान के तनाज़ुर में या फिर जो दीगर एशियाई खिते के तनाज़ुर में कि नौजवानों के मसाइल को सामने लाने में इस ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट का क्या किरदार है? बिल्कुल अहम बात आपने और अहम सवाल आपने की। ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट का सबसे जो अहम टारगेट है ये करियर जो गाइडेंस है, करियर काउंसलिंग है, उसके ऊपर काम करने का एक सिस्टम और एक काम कर रही है ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट। शायद भाई जिस तरह आपने मुझसे सवाल की कि पाकिस्तान में जो यूथ का क्या मसले हैं, क्या इश्यूज है, आप यकीन मानिए मैं कल रात भी अराउंड 1500-2000 के करीब जो यूथ थे उनके एक इवेंट में बैठा हुआ था, तो वहां पे भी मेरी स्पीच यही थी। तो असल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा वो शायद भाई ये है जो हमारे यूथ का, क्योंकि शायद भाई अगर आज आप चाइना में बैठे हैं तो आपने अपना लोहा खुद मनवा के वहां चाइना में बैठे हैं और अपने खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अगर हम अपना लोहा मनवाएंगे, अगर हमें अपने आप को एक जो है ना पर्सनालिटी बनाना है, हमें अपना लोहा अपने जिंदगी में अपने आप को कामयाब करना है, तो उसके लिए शायद भाई हमें सीरियस होना है। हमें इस चीज को नहीं देखना है कि यार लाइफ में सीरियसनेस को, जो सीरियस लाइफ है उसको हमने बहुत ज्यादा तो लीड किया, अब थोड़ा सा एंजॉयमेंट की तरफ भी चले। इस तरह ना हो कि हम लोग जो है ना एंजॉयमेंट को इतना ज्यादा फरोग दें जो हमारी जो सीरियस लाइफ हो उसको हम भूल जाए। जो ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट का मेन टारगेट है कि वो हमारे नौजवानों के ऊपर सियासी निजाम को फाल करेगा। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके, जो लॉ के साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसके साथ मिलके जो हमारे यंग नौजवान है, तो ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट का टारगेट यही है कि वो डिफरेंट पॉलिटिकल टॉक्स और डिफरेंट जो लीडरशिप समिट और उनको वो सारे जो नेशनल और रीजनल और सेंट्रल और ग्लोबली जो प्रोग्राम्स के हवाले से उनको वो सारे जो उसके आईनी, हर ममालिक के आईनी तौर तरीके हैं, आईनी तौर तरीके में किस तरह आपको आना है, वो सारी जो है ना एक पूरा नॉलेज उनको देंगे। न कि वो किसी तजर्बेकार या किसी बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन के जो है ना सालों साल अपना टाइम जाया करे और उसके लिए वो दिन रात खिदमत करते रहे, बल्कि इस चीज से हट के हाँ ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट को नॉलेज प्रोवाइड करता है
ان کو پھر پریکٹیکل شپ میں لاتا ہے, ڈائریکٹ ان کو لا کے لیڈر کھڑا کر کے اس کے ملک میں اس کو جو ہے نا ایک لیڈر بناتا ہے. اور اس میں کوئی ایسی جو ہے نا دو رائے نہیں ہے, اس میں پہلے سے بھی گلوبل یوتھ پارلیمنٹ نے کام کیے. جی سامعین, وقت کی کمی کے باعث آپ کو گلوبل یوتھ پارلیمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹری اور معروف نوجوان سماجی کارکن شبیر بلوچ کی بات چیت کا دوسرا حصہ آئندہ ہفتے سنوائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے حوالے سے آپ کی ای میل کا انتظار رہے گا. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں urd@cri.com.cn پر. مزید خبروں, تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn. شاہد افراز خان کو CRI کے بیجنگ اسٹوڈیوز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. چائنا ریڈیو انٹرنیشنل, ایک نئے آغاز کے ساتھ ایک نیا انداز, وہی جوش, وہی جذبہ, وہی ولولہ. میڈیم ویوز, شارٹ ویوز اور FM پر ایک ساتھ ہماری نشریات آپ کے لیے, پاکستان کے لیے. روزانہ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک FM 98 دوستی چینل پر. اسلام آباد اور لاہور سے ایک ساتھ. چائنا ریڈیو انٹرنیشنل میڈیم اور شارٹ ویوز پر بھی ایک ساتھ, صرف آپ کے لیے, پاکستان کے لیے. صبح 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک شارٹ ویو 7240 کلو ہرٹز اور 9695 کلو ہرٹز پر. صبح 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک شارٹ ویو 9450 کلو ہرٹز اور 11650 کلو ہرٹز پر. رات 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز, شارٹ ویو 9800 کلو ہرٹز اور 11660 کلو ہرٹز پر. اور رات 11 بجے سے 12 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز, شارٹ ویو 7285 کلو ہرٹز اور 9535 کلو ہرٹز پر. اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں, حالات حاضرہ, دلچسپ خبروں, آڈیو ویڈیو رپورٹس, ڈاکیومنٹریز اور نت نئی معلومات کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا فیس بک پیج FM 98 دوستی چینل. CRI کی نشریات میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ای میل کیجیے urd@cri.com.cn پر. وزٹ کیجیے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی ویب سائٹ urdu.cri.cn. چائنا ریڈیو انٹرنیشنل, ہر لمحہ آپ کے ساتھ ساتھ.